ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ। ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਹਿ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਕੇਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕੇਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀਅ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨ ਕੋਏ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵੀਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀਅ ਲੈ ਫਿਰਦੇ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟ। ਕਾਥੇ ਕਾਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ। ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ। ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇਹ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਮੁਹਾਉ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰਖੀਐ ਭਾਉ। ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨੋ ਨ ਜਾਈ। ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ। ਜੇਤੀ ਸੇਠੋ ਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ। ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੇ। ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਧਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣੇ ਗੁਣ ਕਰੇ। ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ। ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ। ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ। ਸੁਣਿਆ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਵਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦੋ। ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦੋ। ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ। ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ। ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਭਾਵੈ ਮਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਲਿਖਣ ਹਾਰ। ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧੇ। ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭੁਵਨ ਕੀ ਸੁਧੇ। ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨ ਖਾਏ। ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ। ਮੰਨੈ ਪਥਿਓਂ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ। ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ। ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨ ਭਿਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ ਮਨ ਕੋਏ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਪੰਚੇ ਭਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ। ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ। ਧਵਲੇ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਫਿਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ। ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ। ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੜੀ ਕਲਾਮ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ। ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ। ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ। ਕੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ। ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ।
ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ, ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ, ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਭਗਸਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਲਿਵ ਲਾਇ ਤਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖੰਦ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ। ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵੈ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਤਾਵ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ, ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ। ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ, ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ। ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਬਖਾਣ। ਜਿਨੇ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ, ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ। ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ, ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਓਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ, ਓਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹਿ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਭਉ ਜਾਹੋ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨੁ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨੁ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਉ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਵਸਤ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰੋ। ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ, ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਵਾ ਆਕਾਰੋ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਨ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁੱਤ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਉ ਜਾਣੈ, ਅੱਗਾ ਗਿਆ ਨ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥੱਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇਕ ਬਾਤ। ਸਹਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾ, ਅਸਲੂ ਇਕ ਧਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ, ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੈ ਬਾਹ, ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਆ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਨੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ। ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਨੈ ਦੇਣ ਨ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਏ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੇਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕੇਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਗ ਅਪਾਰ, ਕੇਤੇ ਅਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੋ। ਕੇਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟੈ ਬੇਕਾਰ, ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ। ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਕੇਤਿਆ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ। ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਆਖ ਨ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ। ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹਿ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ। ਆਖੈ ਸੇ ਪੇ ਕੇਈ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ। ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਆਭੈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ। ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ। ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨੀਸਾਨ। ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ, ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ। ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਬਖਿਆਣ, ਆਖੈ ਬਰਮੇ ਆਖੈ ਇੰਦ। ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ, ਆਖੈ ਈਸਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ। ਆਖੈ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ, ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ। ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੂਨ ਜਨ ਸੇਵ, ਕੇਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ। ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ, ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇਹ। ਤਾਖ ਨ ਸਕੈ ਕੇਈ ਕੇ, ਜੇਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ। ਸੋ ਦਾਰੂ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ, ਜਿਤ ਭੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ।
ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ ਕੀਤੇ ਬਾਵਨ ਹਾਰੇ ਕੀਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਈਨ ਕੀਤੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੇ ਗਾਵੈ ਤੋਨੋ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਗਾਵੈ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵੈ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ਗਾਵੈ ਇੰਦੇ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨੇ ਸੁਰਗਾ ਮਛ ਪਿਆਲੇ ਗਾਵਨ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਹਾ ਬਲਸੂਰਾ ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵੈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨੋ ਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰੁਜਾਈ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ ਚਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵ ਹੈ ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲੱਖ ਹੋਏ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਆ ਹੈ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਇਹ ਤੁਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆ ਚੜੀਆ ਹੋਏ ਕੀਸ ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜਾ ਠੀਸ ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਤਿਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਕੜੀਐ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਤੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੋਨ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋੜ ਆਨੰਦ ਸਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ ਤਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾ ਸਦਾ ਕੀ ਸੁਧ ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮੈਂ ਮਮਾਹਿ ਤਾਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਓਹੇ ਮਰਹਿ ਨ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋ ਕਰੈ ਆਨੰਦੋ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਅਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ
ਪਾਓ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ, ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਤਿਤ ਢਾਲ। ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਲੋਕ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार। चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार। सह सियाण पालख होए ता इक न चलै नाल। किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन खरी निमाणी। मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन खरी निमाणी। मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन खरी बिन पिर क्यों सुख पाया। पानी अन्न ना पावे मरिया हावे। बिन पिर क्यों सुख पाया। गुर आगे करो
बिन खरी निमाणी मिल मेरे प्रीतमा जियो खुद बिन खरी निमाणी मिल मेरे प्रीतमा जियो खुद बिन खरी निमाणी।
एक बुजुर्ग आदमी ट्रेन के अंदर चाय बेच रहा है। ध्यान देना, एक बुजुर्ग आदमी ट्रेन के अंदर चाय बेच रहा है। उसके हाथ कांप रहे, शरीर में ताकत नहीं, उदास है। बड़ी मुश्किल से चाय बेचकर ट्रेन के चलने का समय हो गया, उतर गया और प्लेटफॉर्म के पास में उसकी झोपड़ी है, उसके अंदर आकर बैठ गया और अपनी बीवी से कहता है कि काश भगवान ने हमें औलाद दी होती, काश भगवान ने हमें औलाद दी होती तो आज इस उम्र में मुझे काम नहीं करना पड़ता। हर से बोलिए धन गुरनाथ। इस उम्र में जब शरीर साथ नहीं दे रहा, मेहनत करनी पड़ रही, बेटा होता वो काम करता, हम आराम से बैठते। घरवाली की आंखों में भी आंसू आ गए, वो भी रो पड़ी। थोड़ी देर में दूसरी ट्रेन का टाइम हो गया। ट्रेन आकर रुकी स्टेशन पर, ये फिर से खेती लेकर गया। सुबह से लेकर शाम हो गई, पर ये एक बात गौर से देख रहा है कि एक बुजुर्ग दंपत्ति पति पत्नी बाहर बेंच पर बैठे हैं सुबह से लेकर शाम तक। इससे रहा नहीं गया, उसने सोचा शायद इनकी ट्रेन का इनको पता नहीं है, मैं जाकर बता देता हूँ। ध्यान देना, इनकी ट्रेन का इनको पता नहीं है, मैं जाकर बता देता हूँ। पास में जाके पूछता है कि बाबा आपकी कौन सी ट्रेन है, मैं चढ़ा देता हूँ। तो बुजुर्ग कहता है कि हम सुबह से ट्रेन से उतरे हुए हैं, हमें ट्रेन नहीं पकड़नी, हमें ट्रेन नहीं पकड़नी। हमारे छोटे बेटे ने हमें ट्रेन में चढ़ा दिया कि इस स्टेशन पर उतर जाना, बड़ा बेटा लेने आ जाएगा। घर से बोलिए धन गुरनाथ। और हाथ में एक चिट्ठी दे दी कि अगर ना लेने आए तो किसी को चिट्ठी पढ़ा देना, तो कोई भी आपको बेटे के पास पहुंचा देगा। तो चाय बेचने वाला कहने लगा लाओ चिट्ठी मुझे दो। चिट्ठी पढ़ी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। घर से बोलिए धन गुरनाथ। चिट्ठी पढ़ी तो जमीन पर बैठ गया, सोच में पड़ गया। चिट्ठी में लिखा था कि जो भी कोई ये चिट्ठी पढ़ रहा है, मेरे पिता माता अनपढ़ है, किसी भी जाकर वृद्ध आश्रम में छोड़ आना। घर से बोलिए धन गुरनाथ। दो बेटे हैं उसके, छोटा भी बड़ा भी। पर चिट्ठी में लिखा है कि जिसके हाथ में भी ये चिट्ठी आए, किसी भी वृद्ध आश्रम में जाकर छोड़ आना। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, मेरा आप लोगों से एक सवाल है, जरा ध्यान से जवाब दीजिए। औलाद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? चाय वाला कहता है कि भगवान ने हमें औलाद नहीं दी। अब कहता है कि शुक्र है भगवान तूने औलाद नहीं दी, औलाद अगर ऐसी होती है तो इससे अच्छा तो हम बे औलाद ही अच्छे। सवाल है यहाँ पर, औलाद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? औलाद हो या ना हो, इससे सुख का और दुख का कोई मतलब ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुख औलाद ने नहीं देना, दुख औलाद ने नहीं देना। ये महापुरुषों के वचन दास आपको बता रहे हैं, बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन, कि सुख ना तेरे औलाद ने देना है, ना दुख तेरी औलाद ने देना। न सुख तुझे तेरे धन ने देना है, न दुख तेरे धन ने देना है। न सुख तेरी बीवी ने घरवाली ने देना है, न दुख तुझे तेरी घरवाली ने देना है, तेरे घरवाली ने देना है। दुख और सुख तुझे मिलने हैं तेरे कर्मों से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर तेरे कर्म नेक हैं, औलाद नहीं भी है, तू अकेला भी बैठा है तो भी सुखी है। और अगर तेरे कर्म नेक नहीं है, तू राजगद्दी पर भी बैठा है तो दुखी है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन कि सुख और दुख ये बाहर की अवस्था का नाम नहीं, मन की अवस्था का नाम है। सुख दुख इस मन की वृथा, ये मन से बुलेखा निकालना है हमें कि हमें हमारे बच्चे सुख देंगे, हमें हमारे बच्चे दुख दे रहे हैं। कई लोग आते हैं कि बच्चे दुख देते हैं, बच्चे नहीं दुख देते।
कर्म दुख देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर बाबा अनंत सिंह जी महाराज के वचन कर्म बनते कैसे हैं? नाम जपने से। अमृत वेले उठ के नाम जपने से कर्म बनते हैं। और सिर्फ कर्म ही नहीं बनते, उससे सुख नहीं लिखे जाते, जो आने वाले दुख होते हैं वो भी कट जाते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ये कैसे होता है? आइए 2 पंक्तियां पढ़ें, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। बाहो बाहो करे से जन सोहरे, बाहो बाहो करे से जन सोहरे, बाहो बाहो करे से जन सोहरे, बाहो बाहो करे से जन सोहरे। तिनको पर जा पूजन आए, 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 तिनको पर जा पूजन आए। तिनको पर जा पूजन आए, तिनको पर जा पूजन आए। बाहो बाहो करे से जन सोहरे, बाहो बाहो से जन सोहरे, बाहो बाहो करे से जन सोहरे, बाहो बाहो करे से जन सोहरे। कर्म कैसे बनते हैं? कैसे? वाहिगुरु 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 प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी महाराज कीर्तन में जुड़े हुए हैं, संगत बैठी है। बाबा अनंत सिंह जी महाराज कभी भी किसी शहर में जाकर दीवान नहीं लगाते थे। शहर से बाहर जंगल में, जहाँ शहर शुरू होता है काफी दूर, वहां पर दीवान लगाते थे। किसी ने पूछा कि अगर शहर में दीवान लगाओगे तो भीड़ ज्यादा इकट्ठी होगी, आपका नाम ज्यादा होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी महाराज कहने लगे हमें भीड़ नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कोई नाम का आशिक ही हमारे पास आए, जिसे प्यास हो, और इतनी दूर चलकर वही आएगा जिसे प्यास हो, टाइम पास करने वाला नहीं आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये उनकी सोच थी। आज कंपटीशन लगा हुआ है भीड़ इकट्ठी करने का, और बाबा अनंत सिंह जी महाराज कि भीड़ ना आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जंगल में बैठे हैं, थोड़ी सी संगत बैठी है, और जहाँ भी जाते थे एक बोर्ड बार लगवा देते थे। क्या लिखा होता था उसमें? आज भी नानक सर में वो बोर्ड लगा हुआ है कि ये जप और तप का स्थान है। बोर्ड पे लिखा हुआ है ये जप और तप का स्थान है। यहाँ पर कोई बाहर की बात नहीं करनी, पॉलिटिकल बात नहीं करनी, अखबार नहीं पढ़ना, टीवी नहीं देखना। यहाँ पर केवल नाम जपना है तो आओ। खाने का कोई प्रबंध नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रहने के लिए कमरा नहीं है, खाने का कोई प्रबंध नहीं है। जो भी आए अपनी जिम्मेदारी पे आए, और आना है तो केवल नाम जपना है। बाबा अनंत सिंह जी महाराज का ये बोर्ड लगा होता था हर जगह।
फिर भी लोग आते थे कि हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कीर्तन का भोग पड़ा, सब चले गए, पर एक आदमी बैठा है, वो जा नहीं रहा। सेवादारों ने उसे भेजना चाहा, पर वो ढीठ उठे ही ना। कहने लगा मुझे यही रहना है। ध्यान से देखा तो वो अंधा था, आंखें ही नहीं है उसकी। तो बाबा अनंत सिंह जी महाराज के पास जाके कहा, भाई एक आदमी जाने को तैयार नहीं, अंधा है, कहता है यही रहूंगा। बाबा अनंत सिंह जी ने अपने पास बुला लिया। कहने लगे, भाई यहाँ पर रहकर क्या करेगा, हमारे पास रहने का कोई प्रबंध नहीं। वो अंधा आदमी कहने लगा, कोई ना कोई सेवा कर लूंगा, 2 रोटी दे देना मुझे खाने के लिए, 2 रोटी खा लिया करूंगा, और क्या करूंगा, पर मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से। ध्यान से श्रवण कीजिए, बाबा अनंत सिंह जी ने जो कहा। कहने लगे, 2 रोटियों के लिए यहाँ रहना चाहता है, 2 रोटियों के लिए। मैं जो तुझे कहता हूं वो कर। तू 2 रोटियों की बात करता है, तू रोटियां बांटने वाला बन जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगा, मैं अंधा, मुझे कोई पूछता नहीं। बाबा अनंत सिंह जी कहने लगे, जैसे हम कहते हैं वो कर, लोग तेरे चरण धो धो कर पिएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्या कर। बाबा अनंत सिंह जी ने उसे 40 दिन का नेम दिया मूल मंत्र का। अमृत वेले उठ के स्नान करके 40 माला रोज मूल मंत्र की करनी शुरू कर, और इसे बंद मत करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खाली 40 दिन नहीं, इतना नेम बनाने के लिए है 40 दिन। 40 दिन में नेम बन गया, उसके बाद छोड़ मत देना, करते रहना। वाणी में इतनी ताकत है, तू देखना क्या होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने वचन माने, अमृत वेले स्नान करके 40 माला मूल मंत्र की करनी शुरू की। जो मुख से कहता है पूरा हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब लोगों की लाइन लगनी शुरू हो गई। लोग तो, दुनिया तो दुख से भरी पड़ी है, किसी के मुख से कुछ निकले, बात पूरी हो जाए, दुनिया पीछे पड़ जाती है। दुनिया पीछे लग गई, पूजा होनी शुरू हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर जैसे ही पूजा होनी शुरू हो गई, ये बात अलग है, ये साखी घटना ही अलग है, पर यहाँ पर मैं बात यहाँ पर ही खत्म कर दूं कि नाम में कितनी शक्ति है। अंधा आदमी जो भीख मांग रहा है 2 रोटियों की, आज दुनिया उसकी पूजा कर रही है। क्यों? कर्म बदल गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और कर्म कैसे बदले? नाम से। इस नाम को पकड़ो। कर्म बदलने हैं तो नाम, ये बात मन में बिठा लो कि सुख दुख अपने कर्मों से हैं। किसी पर उंगली मत करो कि इसने मुझे दुख दिया, इसी ने मुझे दुख दिया, इसी ने मुझे दुख दिया। किसी ने दुख नहीं दिया, ये बहाने होते हैं। दुख तुझे तेरे कर्म देते हैं, सुख तुझे तेरे कर्म देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाहो बाहो करे से जन सोने, बाहो बाहो करे से जन सोने, बाहो बाहो करे से जन सोने, बाहो बाहो करे से जन सोने। तिनको परजा पूजन आई, तिनको परजा पूजन आई, तिनको परजा पूजन आई, तिनको परजा पूजन आई। वाह वाह करे से जन सोहने। सोहने, सुंदर, प्यारे। हमारी नजर में सुंदर वो है जिसका शरीर सुंदर है, जिसके नयन नक्श सुंदर हैं, हम उसे सुंदर कहते हैं। पातशाह कहते हैं मेरी नजर में इसका कोई महत्व ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पातशाह कहते हैं चाहे कोई गोरा है, चाहे काला, मोटा है, पतला, चाहे कोई गरीब है, अमीर है, पर अगर वो वाहिगुरु वाहिगुरु करता है तो मुझे सोना लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाहो वाहो करे से ही जन सोहने। सुंदरता का शरीर से कोई लेना देना नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, बानी कह रही है कि वाहो वाहो करे से ही जन सोहने। और यहीं पर बस नहीं,
जो उसे सोना लग गया तिनको प्रजा पूजन आई। जो गुरु को भाग्या, वाहिगुरु वाहिगुरु जिसका किया हुआ गुरु को भाग्या, सारी खलकत सारी प्रजा उसकी पूजा करने आ जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाहो बाहो करे से जन सोने, बाहो बाहो करे से जन सोने, बाहो बाहो करे से जन सोने, बाहो बाहो करे से जन सोने। तिनको प्रजा पूजन आए, तिनको प्रजा पूजन आए, तिनको प्रजा पूजन आई, तिनको प्रजा पूजन आई। उस अंधे को लोग पूजने लगे। अंधा है पर लोग पूजने लगे, क्यों? क्या किया उसने? वाह गुरु 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 वाह ये जो दास अब घटना सुनाने जा रहा है, ये बाबा नंद सिंह जी महाराज के गुरु बाबा माँ हरनाम सिंह जी ने अपने मुखार बिन से सुनाई। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक राजमहल है, उसके बाहर एक औरत रोज झाड़ू मारती है। राजमहल के बाहर कई सालों से झाड़ू मारती है। राजमहल में जो रानियां रहती हैं उनको पर्दे से बाहर आने का हुक्म नहीं, पर्दे में रहती हैं।
पर इस नौकरानी से बात करने के लिए रानी लगभग रोज बाहर आती है, कुछ बात करती, कभी कभी इनाम भी देती है। रानी इनाम भी देती है, कभी कभी प्यार करती है नौकरानी से, रोज झाड़ू मारती है बाहर। एक दिन नौकरानी की तबीयत खराब हो गई, वो नहीं आ सकी। उसने अपने जवान बेटे को भेज दिया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि अब तू जाके झाड़ू मार। वो झाड़ू मारने गया, झाड़ू मार रहा है। रानी को पता नहीं कि आज नौकरानी नहीं उसका बेटा है, पर्दे से बाहर आ गया। उस नौकरानी के बेटे ने रानी को देखा, इतनी खूबसूरत रानी। उसके मन में पाप आ गया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वासना से भर गया मन, रानी को देखता रह गया। रानी फटाफट अंदर चली गई। अब ये घर में आ गया, उदास बैठा है, उदास बैठा है। माँ कहती है खाना खा ले, खाना नहीं खा रहा। 1 दिन 2 दिन खाना नहीं खा रहा। माँ कहती है बता तो सही क्या हुआ। कहने लगा कि मुझे रानी से शादी करनी है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नौकरानी समझाने लगी कि ये हो नहीं सकता, वो महारानी है, राजे को पता चल गया हमें खत्म करवा देगा। ये बात मन में सोच भी मत, और ये बहुत बड़ा पाप है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर उसके बेटे के मन में जो बात आ गई सो आ गई। भूखा बैठा है, मरने की हालत हो गई, खाना नहीं खा रहा। आखिर में कहता है ठीक है, मैं शादी नहीं कर सकता, एक बार रानी से बात तो कर सकता हूँ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार बात करवा दो रानी से। यहाँ पर एक बात दास फिर से खुल के बता दिया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 10वें ग्रंथ की वाणी में लिखा हुआ है स्पष्ट कि शरीर का संग ही केवल संग नहीं है। 4 बज्जर कुरैते हैं, 4 बज्जर कुरैते हैं। बज्जर कुरैत उसे कहते हैं 1000 पाप एक तरफ और 1 पाप एक तरफ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 4 बज्जर कुरैतों में एक कुरैत है पराय पुरुष या पराय स्त्री का संग करना। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं संग सिर्फ शरीर का नहीं होता, संग करने के कई ढंग हैं। मन में वासना रखकर किसी से बात करना वो भी संग है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आंख भरकर किसी को देखना वो भी संग है। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 10वें ग्रंथ की वाणी में लिखते हैं। स्पर्श करना संग है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 7 प्रकार के संग लिखे हैं, 7 प्रकार के। अब ये कहता है कि मुझे बात करा दो, कम से कम बात तो करा दो रानी से। तो नौकरानी ने देखा कि मेरा बेटा मर रहा है, रानी के पास पहुंच गई, सारी बात बताई। रानी हैरान हुई, चुप कर गई। समझदार थी, ज्ञानी थी। कहने लगी राजा इस प्रकार तो मिलने देगा नहीं, मैं एक तरीका बताती हूँ तुम्हें, अपनी बेटी से जाकर वो कहो करने के लिए। राजा मुझे खुद भेजेगा उससे मिलने के लिए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रानी ने समझाया अपने बेटे से कहो भगवे कपड़े पहन ले, गले में मालाएं पहन ले, उसे पिन्नियां बनाकर दे दो, एक मटका भरकर। पिन्नियां होती है साथ संगत जी, पंजाब में बनती हैं ये, देसी घी की, ड्राई फ्रूट पड़ा होता है, बहुत हैवी होती है। अगर दिन में आदमी एक खा ले सुबह तो शाम तक भूख नहीं लगती। हर से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। के मटका भरकर पिन्नियां बनाकर दे दो कि वो जमीन में वहां गाड़ ले, चौक में बैठ जाए आंख बंद करके, मटके के ऊपर ही बैठ जाए। जब रात हो कोई ना दिख रहा हो, 1-2 पिन्नियां खा ले, राम राम करता जाए। कोई भी आए कुछ भी रखे, देखे नहीं, आंख खोले ही नहीं, बस पूरा दिन रात राम राम करता जाए। उससे कहो इस प्रकार करने के लिए मैं खुद आके उससे बात करूंगी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब बेटा बात मान गया, भगवे कपड़े पहने, पिन्नियां बनाई, चौक में पेड़ के नीचे जमीन खोदी, पिन्नियां दबा दी, मटके में खुद ऊपर बैठ गया, आंखें बंद कर ली, गले में माला करमंडल रखा है, राम राम करते जा रहा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब लोग देख रहे हैं कि ये कौन महात्मा आया है, खाता कुछ भी नहीं,
राम राम करता जा रहा है। ये बहुत पहुंचा हुआ महात्मा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उठता ही नहीं, चाहे कोई कुछ रख जाए, चाहे कोई उठा कर ले जाए, इसका ध्यान ही नहीं। ये तो महात्यागी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये आंखें बंद करके राम राम करता जा रहे हैं। लोग माथा टेक रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहा। लाइन लग गई दर्शन करने वालों की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु कि नानक। ऐसा महात्मा आया है, खाता कुछ नहीं, कितने दिन हो गए, और राम राम करता रहता है, ना किसी की तरफ देखता है, ना आंख खोलता है, ना बात करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये दो पंक्तियां पढ़े, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। बाहो बाहो करे से जन सोने, बाहो बाहो करे से जन सोने, बाहो बाहो करे से जन सोने, वाह वाह करे से जन सोने। तिनको पर जा पूजन आए, तिनको पर जा पूजन आए, तिनको पर जा पूजन आए, तिनको पर जा पूजन आए। तिनको पर जा पूजन आए, तिनको पर जा पूजन आए, तिनको पर जा पूजन आए, तिनको पर जा पूजन आए। बाहो बाहो करे से जन सोने, बाहो बाहो करे से जन सोने, बाहो बाहो करे से जन सोने, बाहो बाहो करे से जन सोने। प्रजा की लाइन लग गई दर्शन करने के लिए। पाखंड कर रहा है, पाखंड। राम नाम से प्यार नहीं है, पर फिर भी सारी प्रजा की लाइनें लग गई दर्शन करने के लिए। कमाल की बात है। वैसे साथ साथ अब तो इतना घोर कलयुग हो गया, पाखंड करने की भी जरूरत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तो 4 लोग साथ में हो। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ। मैं और मेरे दोस्त एक पहाड़ पर चढ़ रहे थे। मुझे पहाड़ पर चढ़ने का बहुत शौक है। पहाड़ पे चढ़ रहे थे, मेरे मन में एक मजाक सूझा। लोग भी बहुत सारे पीछे से आ रहे थे। मैंने अपने मित्र को एक पत्थर पे बिठा दिया जबरदस्ती। मैंने कहा आंख मत खोलना, आंख बंद करके बैठ जा। मेरे हाथ में माला थी, मैंने उसके गले में डाल दिया, और हम 3-4 लोग ऐसे करके खड़े हो गए हाथ जोड़ के। पहले तो 1-2 लोग थोड़ा रुके, चले गए। फिर 1-2 आदमी आए, माथा टेका। फिर हमसे पूछा ये महात्मा कौन है। 1 घंटे में भीड़ लगनी शुरू हो गई वहां पर। माथा टेक के हर कोई जाता था। लोगों ने भेंटा तक रखनी शुरू कर दी। सच्ची बात है। थोड़ा सा पखंड करो, लोग पीछे लग जाते हैं, पर थोड़ा विचार कर लिया करो। गुरबाणी कहती है अकली साहिब सेवी है, अकली पाई है मान। ये अकल सिर्फ धंधे में लगाने के लिए नहीं दी है। इस अकल को लगाओ भगवान को पूजने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसके आगे सर झुका रहे हो, पहले देखो क्या वो इस लायक है कि हम उसके आगे सर झुकाएं। इसीलिए तो मन करता है कि धन गुरु नानक हमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से जोड़ गए, कि पखंडियों से बचा गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मोको तो भरोसो गुरु ग्रंथ महाराज पे, मोको तो भरोसो गुरु ग्रंथ महाराज पे। मोको तो भरोसो गुरु ग्रंथ महाराज पे, मोको तो भरोसो गुरु ग्रंथ महाराज
ये बात पहुंचते पहुंचते राजे के कानों तक पहुंचती कि ऐसा महात्मा बैठा है, ना खाता है ना पीता है, उठता ही नहीं, चाहे लोग कुछ रख जाएं, कुछ उठा कर ले जाएं, उसे परवाह नहीं। त्यागी बैरागी महात्मा है, राम का सिमरन करते जाए। राजा हीरे जवाहरात के थाल भर कर ले गया, सैनिकों के साथ में माथा टेकने गया। राजा ने हीरे जवाहरात उसके आगे रख दिए, पर उसने देखा ही नहीं। घर से बोलिए धन गुरु नानक। वो क्या कर रहा है? राम 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 राजा काफी देर तक बैठा रहा कि शायद महात्मा आंखें खोलेंगे, पर महात्मा ने आंखें नहीं खोली। काफी देर तक इंतजार करने के बाद राजा उठकर चला गया। जाकर रानी से कहता है कि महात्मा आया है, बहुत पहुंचा हुआ, जाकर उसके दर्शन करा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब महारानी मुस्कुरा पड़ी कि सारा काम तो मेरा किया हुआ है, राजे को पता नहीं। अब रानी अपने दासियों के साथ पहुंच गई थाल लेकर। सबके सामने उसने माथा टेका, दासियों को दूर खड़ा किया और कहने लगी, महात्मा आंखें खोल, मैं आ गई, कर ले मुझसे जो बात करनी है। पर अब महात्मा आंखें नहीं खोल रहे। पखंड के लिए राम राम जप रहा है, पर आंखें नहीं खोल रहा। रानी ने दूसरी बार कहा, आंखें खोल, समा हो रहा है, मुझे जाना है। क्यों मेरे सामने क्यों पाखंड कर रहा है? पर वो आंखें नहीं खोल रहा। अब तीसरी बार रानी ने धमकी दी, खोलता है आंखें या सबके सामने तेरा राज खोल दूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब उसने आंखें खोली नहीं, बंद आंखों से रानी के चरण पकड़ लिए और कहने लगे, माता तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रानी हैरान कि मुझे माता कह रहा है। कहने लगा, माता तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे क्या दे दिया। जब से ये राम नाम का रटना शुरू मैंने किया है, इस राम नाम ने मेरी सारे अंदर की बुरी वासनाएं खत्म कर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मुझे वो रस मिला है जो रस आज तक मुझे किसी चीज में नहीं मिला। अब तो ना मुझे धन चाहिए ना मुझे कुछ और चाहिए, बस राम नाम जपता रहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दिखावे के लिए जप रहा था साथ संगत जी, दिखावे के लिए। यहाँ पर ये साखी खत्म करके बाबा महाराम सिंह जी समझाने लगे, जो पखंड के लिए जपते हैं दुनिया उन्हें भी पूछती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो दिखावे के लिए जपते हैं, वो चाहते हैं कि दुनिया उनकी पूजा करे, तब भी दुनिया उनकी पूजा करती है। अगर कोई हृदय से सच्चाई से जप ले तो क्या पालेगा? जरा विचार करके देखो। पखंड के लिए नाम जपते हैं हम लोग, कई बार दिखावे के लिए नाम जपते हैं। गुटखा पकड़ के बैठते हैं, 100 लोग दिख रहे हैं, 10 लोग दिख रहे हैं। कभी अकेले में बैठकर देखो, जब कोई नहीं देख रहा होता, क्योंकि जब कोई नहीं देख रहा होता तो वो एक जरूर देख रहा होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जब अगर उसको उस समय अच्छे लग गए, सोहने लग गए, तो क्या होगा? तिनको प्रजा पूजन आई। एक पूजा वो है जो हम अपने मन से अपनी करवाते हैं, उसमें नुकसान ही नुकसान है।
एक पूजा वो जो गुरु नानक अपने प्यार से खुद आपकी करवाता है, उसमें कोई नुकसान नहीं, प्रजा का भला ही भला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाहो वाहो करे से जन सोने, वाहो वाहो करे से जन सोने, वाहो वाहो करे से जन सोने, वाहो वाहो करे से जन सोने। तिनको परजा पूजन आए, तिनको परजा पूजन आए, तिनको परजा पूजन आई, तिनको परजा पूजन आई, तिनको परजा पूजन आए, तिनको परजा पूजन आए। तिनको परजा पूजन आई, तिनको परजा पूजन आई। वाहो वाहो करे से जन सोहणे, वाहो वाहो करे से जन सोहणे, वाहो वाहो करे हे जन सोहणे, वाहो वाहो करे से जन सोहणे। जो हृदय से वाह वाह करते हैं उनकी अवस्था क्या होती है। बाबा अनंत सिंह जी महाराज एक स्थान से गुजर रहे, दो बीबियां, दो लेडीज आपस में बातें करती हैं, खेतों में से गुजर रही कि बाबा अनंत सिंह जी की कमाई बहुत है, कमाई बहुत है, इनके दर्शन करके मन नहीं भरता, पर इनका रंग थोड़ा काला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रंग थोड़ा पक्का है, पक्का कहते हैं काले को, हल्का सा। बाबा अनंत सिंह जी का जो शरीर का रंग था थोड़ा सा काला था। बाबा अनंत सिंह जी के कानों में ये बात पड़ गई। बाबा अनंत सिंह जी उन दोनों के पास चले गए, कहने लगे बीबियों क्या कह रहे थे। वो घबरा गए, कहने लगे बाबा जी भूल हो गई हमसे, मुंह से बात निकल गई। कहने लगे नहीं, हम सुनना चाहते हैं आपने क्या कहा। तो उन्हें कहना पड़ा कि हम कह रहे थे कि आपके दर्शन करके मन नहीं भरता, पर आपका रंग थोड़ा सा काला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी के मन की अवस्था देखिए साथ से। कहने लगे पता है हमारा रंग काला क्यों? मेरे गुनाहों की वजह से मेरा रंग काला पड़ गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक श्वास भी जिसका सिमरन के बिना नहीं जाता, नींद क्या होती है उन्हें पता नहीं, नींद को जीत चुके हैं बाबा अनंत सिंह जी महाराज। एक बार जिसकी तरफ दृष्टि करके देख ले, जमदूत उसे हाथ नहीं लगा सकते ये अवस्था। और मन कहाँ रखा है कि मेरे गुनाहों की वजह से मेरा रंग काला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी का स्वरूप एक बार देख लो, सिमरन शुरू हो जाता है। बाबा अनंत सिंह जी का नाम ले लो, सिमरन शुरू हो जाता है। ये अवस्था कैसे कैसे हुई ये अवस्था? वाह गुरु 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 वाह
वाहिगुरु 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 वाहो वाहो करे से जन सोहणे वाहो वाहो करे से जन सोहणे सारे वाहो वाहो करे से जन सोहणे वाहो वाहो करे से जन सोहणे तिनको पर जा पूजन आए 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 वाहो वाहो करे से जन सोहणे वाहो वाहो करे से जन सोहणे वाहो वाहो करे से जन सोहणे वाहो वाहो करे से जन सोहणे। एक बात आज के दीवान से एक चीज जरूर घर में लेके जाना अपने मन में बसा कर कि मैं दुनिया को चाहे सोना लगूं या ना लगूं गुरु को जरूर लगूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि जो गुरु को सोना लग गया जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा और केती चख चख आवे जावे न जाने कितने करोड़ झक मार कर चले जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नानक। और वही जीत के जाता है बाजी जो वाहिगुरु वाहिगुरु जपता है। ये बात मन में बसा कर जाओ। आलस छोड़ो आलस छोड़ो अमृत वेला संभालो। महापुरुषों के वचन। एक आदमी तीर्थों पे जाकर स्नान करता है सारे तीर्थों पे जाकर दान पुण्य भी करता है दुनिया के जितने अच्छे काम है सब करता है नंगों के तन ढकता है भूखों को भोजन खिलाता है पर अमृत वेले नहीं उठता किसी लेखे नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम नहीं जपता अमृत वेले उठ के किसी लेखे नहीं। और एक आदमी ये कुछ भी नहीं करता ना तीर्थों पे स्नान करता है ना दान करता है ना भूखों को भोजन खिलाता है अमृत वेले उठ के नाम जपता है सारे तीर्थों का स्नान सारे दान पुण्य सारे अच्छे काम उसके लेखे में आ गए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अमृत वेला संभालो आलस छोड़ो नाम जपने की जहां बात आ जाए सारे काम छोड़कर नाम जपो। नित्य नेम संभालो रह सब जी का समय संभालो। अगर यहाँ पर नहीं आ सकते किसी वजह से तबीयत खराब है घर में उठ के नित्य नेम संभालो पर संभालो तभी गुरु को सोने लगेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे हमारे मन की अवस्था बदल जाए आपकी भी और मेरी भी। गुरु मेहर करे हम सबको अमृत वेला नाम दान स्नान बख्शे दृढ़ता बख्शे ताकि हम गुरु को सोने लग जाए। आओ पंक्तियां पढ़ के समाप्ति करें। वाहो वाहो करे से जन सोने वाहो वाहो करे से जन सोने वाहो वाहो करे से जन सोने वाहो वाहो करे से जन सोहणे। तिनको पर जा पूजन आए तिनको पर जा पूजन आए तिनको पर
पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूरन होए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सब तुम कावो। आप हाथ दे मोए बचाओ सुखी बसे मोरो परवारा। सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए। सब बैरन को आज संगरिए पूरन होए हमारी आशा। और भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई और ना त्याओ। जो पर जाओ सो तुम ते पाओ। सेवक सिख हमारे तारिए। सुन सत्र हमारे मारिए आप हाथ दे मुझे उभरिए। मरण काल का त्रास नुवरिए हो जो सदा हमारे पछा। श्रेयस तुझ जो करियो रक्षा राख लियो मोय राखण हारे। साहिब संत साहिब प्यारे दीन बंधु दुष्टन के हंता। हो पुरी ततर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा। काल पाए शिव जो अवतारा काल पाए कर विष्णु प्रगासा। सगल काल का किया तमाशा जवन काल जो की शिव कियो। वेद राज ब्रह्मा जो थियो जवन काल सब लोक सवारा। नमस्कार है ताए हमारा जवन काल सब जगत बनायो। देव दैत जक्षण उपजायो आद अंत के अवतारा। सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी। सगल प्रजा जिने आप सवारे सेवकन को शिव गुण सुख दियो। सकरन को पल मोहब्बत कियो कट कट के अंतर की जानत। भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंजर अस्तोला। सब पर कृपा दृष्ट कर भोला संतन दुख पाए ते दुखी। सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान कट कट के पट पट की जान जब उद कर्क करा कर तारा। प्रजा तर्क तब दे अपारा जब वह कर्क करत हूँ कब हो। मैं मिलत दे तर सब जेते बदन श्रेष्ठ सब धार। आप आपने मोजे उदार तुम सब ही ते रहत निरालम। भेद भेद अरे आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब। आद अनिल अनाद संभव तांका मूढ़ उचारत भेदा। को पेव न पापद भेदा तांको कर पान अनुमान। महामूढ़ कछ भेद न जान महान देव को कहत सदा शिव। निरंकार का चीनत न पेव आप आपनी बुध है जेती। पिन पिन तो तेती तुमरा लखा न जाय पसारा। कुछ सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा। रंग पयोरा वकई कोपा अंडज जेरज से तज कीने। कुछ खान बहो रच देने कहूँ कुल राजा हव बैठा। समट प्यो
संकर बैठा सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव आदि जुगाद स्वरूप से अम्बव अब रक्षा मेरी तुम करो उबार असक संगरो दुष्ट जिते उठवते उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तव सरणी पर के दुष्ट दुखत हव मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते है ताके काल निकटने है रक्षा होई ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट जाय निहारो ताके तापत नगमो हरो और तो सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट छाछ सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल पास ते ताए उमारा जिन नर नाम तिहारो कहा दुष्ट लोक ते रहा खड़ग केत में शरण तिहारी आपो हाथ दे ले उबारे सर्व डोर मोह सहाय दुष्ट लोक ते ले बचाए खड़ग केत में शरण तिहारी आपो हाथ दे ले उबारे सर्व डोर मोह सहाय दुष्ट दुख ते ले राम कली महला तीजा आनंद क्यों कार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर का पाया सहज से की मन वजिया वाधाया राग रतन परवार परियां शब्द गावण आइया आनंद होवा सतगुरु मैं पाया मन मेरा तू सदा रो हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना साचे साहिबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है जिसने सो पावे कहे नानक सच्चे सैव क्या नहीं घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया करसान सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पूजाइया साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा वाजे पंज शब्द घर सभागे सबद वाजे कला जे करतारियां पंज दूत वस कीते काल कंटक मारिया अनंत सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल सूरे पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रया भरपूरे बिनवंद नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद धुरे सलो पवन गुरु पानी पिता चंगियां बुरियां वाचे धर्म हजूर करमी आपो अपने जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु मशक्कत काल नानक ते मुख उजले खेती छोटे नाल। बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय शिव जी सदा शिव जी सदा सहाय।
नमः शिवाय। गुरुजी सदा शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा जय गुरु जी की।